Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the lecture number 19, week 10, System and Network Administration, Linux based ITEC 3116. Today we will discuss about DHCP configuration in Linux operating system. So let's start from the recap of our last week lecture. During last week lecture we were discussed about the network protocols and network management in Linux, and then another lecture we will install and configure Ubuntu server in your Linux operating system by using VMware. So agenda for today's class. In today's class we will discuss about the DHCP, what is DHCP and what is DNS, and then we will discuss about how you people can configure DHCP and DNS server in your Linux operating system. So dear students, as you people know, DHCP is a dynamic host configuration protocol. It is a DHCP works with a client-server models. The client-server models describes how a server provides the resources and services to one or more clients. It is a distributed application structure that dividers tasks or workloads between the providers of a resource and services called server and service request called client. As you know, the client-server model describes how server provides resources and services to one or more clients. एक ऐसा मॉडल जिसमें सर्वर अपने रिसोर्सेज अपनी सर्विसेज एक क्लाइंट को प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर. ये एक ऐसा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है जो अपने टास्क को और वर्कलोड को डिवाइड कर देता है between different providers of our resources or services. Such as you know, people, we have many servers, root level servers, top level root level domains, top level domains, and from that domains you can access the your required data and services by sending a request to your server. आप अपने एज अ क्लाइंट आप अपनी रिक्वेस्ट को सर्वर पे जनरेट करते हैं और सेंड करते हैं, सॉरी, और सर्वर आपका डिफरेंट डोमेन्स को एक्सेस करते हुए, रूट लेवल डोमेन्स को एक्सेस करते हुए, टॉप लेवल डोमेन्स को एक्सेस करते हुए आपके क्लाइंट को वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है. अ सर्वर होस्ट रन one or more server programs which share their resources with clients. A client does not share any of its resources but requests a server's content and services function. आपका क्लाइंट जो है वो अपने रिसोर्सेज दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करता. अगर आप क्लाइंट टू क्लाइंट रिसोर्सेज को शेयर करेंगे तो वो हम उसको क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं कहेंगे, बल्कि दैट इज़ अ पीयर टू पीयर मॉडल. Might be you people listen this model somewhere, peer-to-peer model. In peer-to-peer model there is no any centralized server system. आपके पास कोई centralized जो है वो सर्वर नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है जिसको एक्सेस करते हुए आप अपने रिसोर्सेज, आप अपने कंटेंट्स को क्लाइंट के साथ शेयर कर सकें. ठीक है. जबकि पीयर टू पीयर में आपके कंप्यूटर जो है वो वन कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ अपने रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकता है. इस तरह ये वाला कंप्यूटर जो है वो इस कंप्यूटर के साथ अपने रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकता है. जबकि इन क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका क्लाइंट एक रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जो है वो क्लाइंट को सेंड करता है.
Dynamic host configuration protocol is a client-server model protocol that automatically provides an internet protocol host with its IP address and other related configuration information such as subnet mask and default gateway. आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर काम करता है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जब आप क्लाइंट सर्वर मॉडल की बात करते हैं इट मीन्स कि यू पीपल कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क in your network you will have many clients such as you have 50 clients or 100 clients in your lab or in your offices तो आप उस मॉडल के अंदर आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स को एक सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं देते हैं और वहाँ पे सर्वर आपके उन क्लाइंट्स को सर्विसेज और रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करता है तो उस मॉडल के अंदर आपका जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है वो आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस उनको असाइन करता है उनको सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो ऑटोमेटिकली उनको असाइन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आप आपका एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मैनुअली आपके आईपी एड्रेस जो है वो हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स या थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स की लैब है तो वहाँ पे जाके मैनुअली आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय आप अपने डीएचसीपी को अपने सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसके अंदर आप अपने आईपीस का पूल क्रिएट कर लेते हैं जब आप अपने आईपीस का पूल क्रिएट कर लेते हैं तो उस पूल में से आपका डीएचसीपी जो है वो ऑटोमेटिकली और डायनामिकली आपके क्लाइंट्स को आईपी जो है वो असाइन कर देता है अ क्लाइंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर अ डीएचसीपी विल सेंड आउट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट टू डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्टिंग एन एड्रेस क्लाइंट क्या करता है क्लाइंट कॉन्फ़िगर्ड फॉर डीएचसीपी विल सेंड आउट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए कौन सी सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए आपका डीएचसीपी सर्वर से एड्रेस को लेने के लिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर विल इशू अ लीज एंड असाइन टू दैट क्लाइंट अब लीज बेटा यहाँ पे क्या है ये एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन के लिए आप वो आईपी जो है वो डीएचसीपी सर्वर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्लाइंट को आईपी जो असाइन करते हैं उस स्पेसिफिक टाइम को उस टाइम ड्यूरेशन को हम लीज टाइम कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ वैलिड लीज कैन बी स्पेसिफाइड ऑन सर्वर DSP reduces the amount of time required to configure client and allows one to move a computer to various network and be configured with the appropriate IP address, gateway and subnet mask. For ISPs, it conserves the limited number of IP address it may use. DSP server may assign a static IP address to a specified hardware. जो आपके स्पेसिफाइड हार्डवेयर होंगे उनको आपका आईपी एड्रेस जो है वो स्टैटिक असाइन कर दिया जाएगा ताकि उनके हार्डवेयर जो उनका आईपी एड्रेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज ना हो व्हाट इज आईएसपी आईएसपी रिप्रेजेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स so how DSCP allocate IP address to the client it's depending on the implementation there are three methods of allocating IP address you can allocate IP by dynamic allocation you can allocate IP through automatic allocation and manual allocation or you can say static allocation what is difference between dynamic and automatic allocation a network administrator reserves a range of IP address for DSCP जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप DSCP को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर आप अपने IPs का एक पूल क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक आईपी की क्लास एक आईपी लिखता हूँ जैसे ये क्लास 6 का है 192.168.1.1 and 192.168.1.100 इट्स मीन्स मेरे पास 100 आईपीस का एक पूल है
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और उसका लास्ट पॉइंट जो एड्रेस आईपी एड्रेस है वो 100 होगा। तो एक आईपी, ये मेरे आईपी की रेंज होगी जिसको मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिजर्व कर लिया फॉर डीएचसीपी, एंड ईच डीएचसीपी क्लाइंट ऑन द LAN local area network is configured to the request and IP address from the DHCP server during the network initialization, allows the DHCP server to reclaim and then reallocate IP address that are not renewed. तो आपका जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा डीएचसीपी सर्वर के ऊपर, तो वो डीएचसीपी सर्वर क्या करेगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक आईपी एड्रेस जो है वो इस पूल में से एलोकेट कर देगा। द फर्स्ट टाइम एलोकेशन और डायनामिक एलोकेशन to the client. DHCP server permanently assign an IP address to a requesting client from range defined by the administrator. This is like dynamic allocation, but the DHCP server keeps a table of past IP address assignments so that it can permanently assign to the client the same IP address that client previously had. यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात बेटा ये हो रही है कि आप फर्स्ट टाइम आए, आपने अपने सिस्टम को नेटवर्क के साथ अटैच किया, तो उस नेटवर्क का जब आप हिस्सा बने तो फर्स्ट टाइम जो आईपी का पूल था एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उस आईपी के पूल में से आपकी मशीन को जो आईपी असाइन कर दिया गया है तो वो डायनामिक एलोकेट हुआ, और वो डायनामिक एलोकेट हो गया 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 100 डेज के लिए। वैसे आईपी जो है वो आपको 8 डेज के लिए एलोकेट होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो जिसको हम लीज टाइम कह रहे हैं। आपका ऑफिस टाइम कंप्लीट हुआ, आपने अपना सिस्टम डिटैच किया, आप घर चले गए, आप कल वापस आएंगे, जब वापस आएंगे उसी सिस्टम के साथ और उस सिस्टम को उस नेटवर्क के साथ दोबारा अटैच करेंगे, तो अब आपको आईपी जो है वो क्या नया असाइन होगा? नहीं, बल्कि आपके सिस्टम का मैक एड्रेस डीएचसीपी सर्वर के टेबल के साथ मैच करेगा, और वहाँ पे आपका, क्योंकि ऑलरेडी आपने हैंडशेक किया हुआ है इस नेटवर्क के साथ, तो आपको जो कल असाइन हुआ था आईपी एड्रेस वही ऑटोमेटिकली आपको दोबारा असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब आपको आईपी एलोकेट होगा तो वो आपकी ऑटोमेटिक एलोकेशन होगी। तो मैनुअली आप अपना कोई एक स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है वो किसी भी मशीन को असाइन कर देते हैं, जिसको हम प्राइवेटली यूज़ कर सकते हैं कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज ना हो, लीज टाइम एक्सपायर होने के बाद आपको कोई नया आईपी ना मिल जाए। तो इसलिए आप अपने नेटवर्क के ऊपर जब अपनी सिस्टम को लगाते हैं तो आप वहाँ पे अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपने अपने सिस्टम को डायनामिक आईपी को एलोकेट करवाना है या आप अपने सिस्टम को स्टैटिक आईपी जो है वो असाइन करना है। तो आप स्टैटिक आईपी भी जाके अपने सिस्टम को दे सकते हैं। A DHCP server issues a private IP address depends upon each client MAC address based on a predefined mapping by the administrator. Static allocation is the assignment of a fixed address. आपका क्या, वो फिक्स एड्रेस जो है वो फिक्स रहेगा आपकी मशीन के साथ। फॉर एग्जांपल, असाइनिंग अ कंप्यूटर फिक्स आईपी एड्रेस 192.168.123.114 नेवर चेंज अनलेस डन सो मैनुअली। उस वक्त तक ये चेंज नहीं होगा जब तक आप उसको मैनुअली चेंज नहीं करें, ठीक है। तो डीएचसीपी असाइनमेंट में लीज रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी, आपका आईपी लीज ऑफर, लीज सिलेक्शन, डीएचसीपी सर्वर एंड लीज रिन्यूअल। आप लीज रिक्वेस्ट करेंगे, क्लाइंट ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट टू द डीएचसीपी सर्वर विद द सोर्स एड्रेस, अपने सोर्स एड्रेस के साथ आप ब्रॉडकास्ट करेंगे। द रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द मैक एड्रेस। उस वक्त क्यों, क्योंकि आपके मशीन के पास, आपके सिस्टम के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आप अपने मैक एड्रेस के साथ ब्रॉडकास्ट करेंगे और उसी मैक एड्रेस के ऊपर आपको रिप्लाई जो है वो रिसीव होगा। आईपी लीज ऑफर, डीएचसीपी सर्वर रिप्लाइज विद एन आईपी एड्रेस। लीज रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट करेगा, जबकि लीज ऑफर आपका डीएचसीपी सर्वर करेगा विद एन आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस के साथ वो उसको रिप्लाई करेगा with subnet mask including subnet mask, network gateway, name of domain and name of servers.
duration of lease and IP address of the DHCP server. लीज ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें आपको रिप्लाई के अंदर मिलेंगी? IP address, subnet mask, network gateway, name of domain, name of server, and the duration of your lease time. Lease selection, client receive offer, client receive offer and broadcast to all servers that will accept given offer, so the other DSP server need not make an offer. लीज सिलेक्शन यहाँ पे आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अदर सर्वर्स को ये बता सकें कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल हो चुकी है, तो और सर्वर आपकी इस लीज रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ना दे आपको. The DSP server then sends an acknowledgement to the client. The client is configured to use TCP and IP, Transmission Control Protocol, and Internet Protocol. Lease renewal. What is lease renewal? When half time of your lease has been expired, the client will issue a new request to the DSP server. जैसे ही आपका लीज टाइम जो है वो हाफ पास्ट हो जाएगा, तो आपका DSP सर्वर जो है वो उसको रिन्यू करेगा आपके IP एड्रेस को. यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ DSP allocate IP एड्रेस. यहाँ पे आपके पास नन DSP क्लाइंट स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन है, DSP क्लाइंट 2 IP कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द DSP सर्वर. यहाँ पे इसको आप मैनुअली असाइन करने, जबकि इन दो क्लाइंट्स को आप DSP सर्वर के थ्रू IP जो है वो असाइन करवा रहे हैं. जब आप DSP सर्वर के थ्रू आप इनको IP असाइन करेंगे तो आपका लीज टाइम आपको जनरेट होगा, आप लीज जनरेट करेंगे और उस लीज को रिन्यू करेंगे. ये आपका DSP सर्वर है और DSP सर्वर के पास नंबर ऑफ IP एड्रेसेस का पूल है, जहाँ से वो आपको डायनामिकली और ऑटोमेटिकली IP आपकी सिस्टम को जनरेट करेगा. For example, you can see here DSP client broadcast a DSP server packet. आपका DSP सर्वर क्लाइंट ने उसको ब्रॉडकास्ट किया है कि उसको जो है वो IP रिक्वायर्ड है, यहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट करेगा. DSP सर्वर ब्रॉडकास्ट आ DSP पैकेट. DSP सर्वर DHCP सर्वर 2 एंड DSP सर्वर 1 यहाँ पे आपने देखा इस डेमोन्स्ट्रेशन में, तो यहाँ पे आपको रिस्पांस मिला है आपकी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट. वो रिस्पांस DSP सर्वर 1 की तरफ से आपके क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3 जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी उनको भी, और जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट नहीं की थी उनको भी वो ऑफर जो है वो रिसीव हुई है. तो DSP सर्वर broadcast a DSP offer packet and then DSP client broadcast DSP request packet. फिर ये उसको रिक्वेस्ट करेगा, उसको IP जो है वो असाइन किया जाए. एट द एंड DSP सर्वर 1 ब्रॉडकास्ट a DSP एक्नॉलेजमेंट. तो DSP सर्वर जो है वो उसको एक्नॉलेज कर देगा अपने क्लाइंट को भी, और अपने साथ वाले कोई अगर उसकी सराउंडिंग कोई और सर्वर है तो उसको भी एक्नॉलेज करेगा कि मैंने DSP क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया. तो जैसे ही आपका लीज टाइम जो है वो 50% जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो DSP client sends a DSP request packet for renewal of your lease time. If the client fails to renew its lease after 50% of the lease duration has expired, then DSP server lease renewal process will begin again after 87.5% of the lease duration has expired. 50% टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आपका क्लाइंट लीज रिन्यूअल की रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगा तो आपका DSP सर्वर जो है वो 87.5% टाइम ड्यूरेशन के एक्सपायर होने के बाद उसको रिन्यू कर देगा. If the client fails to renew its lease after 87.5% of lease has expired, then the DSP
Lead generation process starts over again with DSP client broadcast DSP discover discover के पैकेट को सेंड करते हुए वो उसको लीड जनरेशन का पैकेट सेंड करेगा। ठीक है जी। तो व्हाट इज DSP सर्वर एंड व्हाट इज DSP क्लाइंट? DSP सर्वर is a network server that automatically provides and assigns IP address, default gateway, and other network parameters to the client server devices. आपका DSP सर्वर क्या करेगा? वो आपके जितने भी नेटवर्क के ऊपर इस नेटवर्क के ऊपर जितने भी आपने IP क्लाइंट्स को अटैच किया हुआ है उनको IP एड्रेस, गेटवे, नेटवर्क गेटवे सॉरी, असाइन करेगा। और ये तीन तरह के हो सकते हैं, ये डायनामिक भी हो सकते हैं, डायनामिकली, ऑटोमेटिकली एंड मैनुअली। एंड व्हाट इज DSP क्लाइंट? DSP क्लाइंट क्या करेगा? A client is requesting program or user in a client server relationship. For example, the user of web browser is effectively making client request. आपका क्लाइंट क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस नेटवर्क की सर्विसेज को लेते हुए, ठीक है, सर्वर के ऊपर, और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और उसको रिस्पॉन्स देगा। और आपको पता है कि आपके वेब ब्राउज़र www के ऊपर नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स जो है उसको एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, और एट अ टाइम जब उनके नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आपके सर्वर जो है उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ DSP, द फंक्शंस ऑफ DSP। आपका DSP जो है वो कैसे फंक्शन करता है और कैसे फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करता है, क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स होते हैं। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है, एक पीयर टू पीयर मॉडल है और एक हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर आपका क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के ऊपर और उस सर्वर के रिस्पॉन्स पे आपकी क्लाइंट की इनको फुलफिल किया जाता है रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। पीयर टू पीयर में, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपका सर्वर अपने रिसोर्सेज, अपने कंटेंट्स क्लाइंट्स के साथ शेयर करता है, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं होती। जैसे यहाँ पे DSP सर्वर के ऊपर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पे आपका डाटा जो है कंटेंट्स स्टोर है, उन कंटेंट्स में से वो अपने रिसोर्सेज जो जो इस के पास होंगे वो रिसोर्सेज सॉरी आपके क्लाइंट के साथ शेयर होंगे। ठीक है, तो पीयर टू पीयर मॉडल में आपके पास जो रिसोर्सेज है, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने सेकंड पीयर के साथ शेयर करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप अपनी सर्विसेज जो है वो दूसरे पीयर को शेयर नहीं करते। जब हाइब्रिड मॉडल में क्लाइंट सर्वर मॉडल और आपका पीयर टू पीयर मॉडल जो है उनका कम्बिनेशन को हम हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। सो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस चल रहा था कि आपका क्लाइंट सर्वर को कैसे एक्सेस करता है, सर्वर से आईपीज कैसे उसके साथ कॉन्फ़िगर होते हैं, इस प्रोसेस को हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। डोरा मीन्स डी रिप्रेजेंट डिस्कवर, आपकी रिक्वेस्ट सेंड करता है आपका क्लाइंट, ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट को सेंड करेगा कि इज देयर एनी सर्वर, डिस्कवर का पैकेट सेंड करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, ऑफर करेगा अपनी सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज आपके क्लाइंट को चाहिए?
उन सर्विसेज की ये रिक्वेस्ट करेगा और आपका सर्वर जो है वो एक्नॉलेज कर देगा अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए। ठीक है जी, तो इस टोटल प्रोसेस को डोरा प्रोसेस कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर डीएचसीपी डिटेल्स। डीएचसीपी आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इन क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर डीएचसीपी आपको कैसे आरपी आपके सिस्टम्स को एलोकेट करता है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने डीएचसीपी को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर के ऊपर। जैसे आपने लास्ट क्लास में आप लोगों ने सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन विंडोज़ बेस पे सर्वर की इंस्टॉलेशन की और वहाँ पे भी आपने डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर किया। और इसी तरह ही हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंटू सर्वर के ऊपर, जैसे लास्ट क्लास में हमने यूबंटू सर्वर को इंस्टॉल किया। अब सर्वर को तो इंस्टॉल कर लिया है, सर्वर की सर्विसेज को लेने के लिए हमें डीएचसीपी को इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना है, फिर अपाची सर्वर और लैम को कॉन्फ़िगर करना है। तो वन बाई वन हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि आप डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल को कैसे अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूबंटू को यूज़ करते हुए, यूबंटू सर्वर को यूज़ करते हुए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।